Hello and welcome to our special coverage on the result today of the Bihar Assembly polls. And the people of Bihar have voted, and they have voted decisively. The verdict is clearly in favor of the Mahagathbandhan. The Grand Alliance is now leading in 175 seats, with the BJP camp leading in only 61 seats. We'll get you all the details. Let us begin with the headlines. JDU-led Grand Alliance puts up a stunning performance. Coalition secures thumping majority in Bihar. Nitish Kumar is set for a hat-trick of terms. NDA accepts defeat but surprised at the margin of defeat, but BJP dismisses suggestions that Prime Minister Narendra Modi's appeal is on the wane. Results indicate resounding comeback for Lalu Prasad's RJD. Figures indicate that RJD could emerge as the single largest party. Congress terms Grand Alliance's resounding win as a victory of unity over BJP's decisive politics. Party Vice President Rahul Gandhi urges PM Modi to shun arrogance. And Shiv Sena calls Nitish Kumar the new hero of national politics. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee sees a victory of tolerance over intolerance. Well, the Nitish-Lalu Congress Alliance is set to form the government in Bihar. In counting of votes for the Bihar election so far, it has been a strong tilt towards the JDU-RJD Congress Mahagathbandhan. A complete turnaround from initial signs of a NDA lead. By 10 a.m., celebrations were underway at the offices of the JDU and RJD in Patna as it became increasingly clear that Nitish Kumar would be returned for a third term. For the Grand Alliance, most of their sitting ministers are leading in their respective constituencies. Congratulations have been pouring in. Prime Minister Narendra Modi, UPA Chairperson Sonia Gandhi, UP Chief Minister Akhilesh Yadav, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee were among those who sent in their congratulatory messages to Nitish Kumar and Lalu Prasad Yadav. Alright, those visuals are there that you can see a victory mood there in both the camps, RJD as well as JDU. As you can see, the congratulatory messages are pouring in. Initially, the poll results, when they started pouring in, there were indications that probably NDA was in the lead, but by 10 a.m. it was clear that it was the Mahagathbandhan which is going to go great guns. And at the joint press conference that both Lalu Prasad and Nitish Kumar addressed, it was a show of strength that was seen, and those were the visuals there. And in the press conference, Lalu Prasad there made it very clear that it is going to be Nitish Kumar who will be the Chief Minister of the state. So Nitish Kumar there returning, all set to return as the Chief Minister of Bihar. जो ग्रेट विक्ट्री दिया है बिहार की जनता ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, गरीब के लोगों ने, अनुच्च जात के भाइयों ने भी गरीब लोगों ने दिया। इसके लिए हम दोनों भाई आभार व्यक्त करते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का तरक्की विकास तेजी से हम लोग मिल करके बिहार को हम नेशनल मैच पर हम लोग ले जाएंगे। All right, joining us this evening is Mr. Nikhil Anand, who is a senior journalist. He'll be joining us. Also joining us will be our correspondent from JDU office, Akhilesh Suman in Delhi. Also, Kriti Mishra joins us from Congress headquarters. Let's go first to Akhilesh first. Akhilesh, now a big victory there for the JDU and RJD Grand Alliance, almost getting a two-third majority. That is what the trends are saying at the moment. What is the mood there at the JDU office at the moment? Actually, Aishwarya, mood is very upbeat in JDU office, but they are very modest and humble. Since morning, there was no leader in the JDU office till 10 a.m. And after that, they started coming in, and there was a small celebration at JDU office. And after that, they went to the JDU President Sharad Yadav's home.
but they are very modest and very humble, I can tell you. Otherwise, had BJP won, I think the situation could have been drastically different. And what is the most striking thing, that when I am going and when I am asking them that how you expect from Lalu Prasad Yadav, they are very silent. They are thinking that don't know that what type of negotiation is going on between the two leadership, because there is a question of whether there will be a deputy chief minister in Bihar, and also the main portfolios has to be distributed. Yes. And once Lalu Prasad Yadav RJD has gotten maximum number of seats, it will be an uphill task for Nitish Kumar to make a proper balance, so that there should be no confrontation between the two major components of the Mahagathbandhan, that is Grand Alliance. Yes. So I think that is why they are very modest and very humble. But I think negotiation and talks are going on among the highest leadership, that what next till next 1 or 2 days. Aishwarya. All right, thank you so much, Akhilesh. We'll come back to you in the subsequent bulletins. Let's go back now to Kriti Mishra, is joining us from the Congress headquarters. Kriti, now, while everybody is talking about how big a victory it has been for the JDU as well as the RJD, nobody really is talking that much about the Congress. But the fact of the matter is that Congress, while it had kept a very low key, not as much as probably JDU and the RJD, during campaigning, but it has absolutely come out as a winner from 4 seats. This is probably leading in about 25 seats at the moment. So big victory for Congress as well, isn't it? Absolutely, Aishwarya. Well, it was a battle for prestige for Nitish Kumar. It was a battle for survival for Lalu Prasad Yadav, and no less, it was a battle of very high stakes for the Congress party. Yes. After the defeat in the Lok Sabha elections in 2014, this was the opportunity for the Congress to arrest BJP's forward march and to stop BJP's juggernaut, and rightly so, it has done it. Now, of course, the Congress party faces two pertinent questions: whether it will form the government in Bihar with the allies, one, and secondly, will it really work on this method of forming coalitions in the subsequent elections that we will see next year on. So, of course, the Congress party right now said that it is too early to speculate all these things, but right now it is basking in the glory, and rightly so. They've celebrated Diwali today itself. Over to you, Aishwarya. All right, Kriti, stay with us. We'll come back to you. So, early Diwali really for the Mahagathbandhan. Let's go across to Mr. Nikhil Anand, who's a senior journalist who joins us from Patna. Mr. Anand, now all the exit polls, they're completely going wrong, almost all of them, because everybody had almost predicted a neck-and-neck fight. But here we have Mahagathbandhan almost getting a 2/3 majority. What is your take? Did you expect it? Yeah, of course, whosoever was working and assessing the public mood at a ground level, Mahagathbandhan, the Grand Alliance, was of course seems ahead. But this is a surprise result, and you see that 2-3 things is very clear, that the mega campaign, the 1,000 crore plus mega campaign led by BJP has backfired. Second point is that BJP constantly attacked Lalu Prasad Yadav with a notion Jungle Raj. So Nitish Kumar has been able to convince the masses of Bihar that if I am there, I am the face of this future government, and if I am there, there is no Jungle Raj, and there is no Lalu Prasad Yadav won't take the lead and misuse the governance and everything. Nitish Kumar has entirely contributed and campaigned focusing on development issue, and he was very particular and focused. And my biggest take on this election is that he who is down and humble needs fear no fall. And of course BJP needs to learn from this quotation that aggressive campaign led by the Prime Minister and Amit Shah has simply backfired, and it is for the BJP to see and assess how things will go ahead, because it was a campaign, it was a conflict, it was a election between a Prime Minister and future Chief Minister, Absolutely. Nitish Kumar. So it was a state election, and the whole stake of Prime Minister was put here with 26 or 30 campaign rallies he organized. So I see that, and one more surprise package in this election is the achievement. The Congress has got around
20 seats. Yes. And the Mahagathbandhan and the NDA allies, RLSP, LJP and HUM, they have got merely, they have not crossed double digit. So for BJP, 83 seats were the worst setback, I would say. Yeah. A big setback really for the BJP and the NDA camp there. It is very interesting that you pointed about the NDA allies, because they have actually failed to impress really. Of course, a big victory there for Mahagathbandhan. Nitish Kumar is going to address a press conference in a short while from now. We'll just cut across the moment he starts speaking. But Mr. Anand, as you were saying, that it is really important for the BJP to do a correction, a course correction there. It is important for BJP really to learn from its mistakes and what it derives from the decision today. Yeah, Ashwara, basically in the whole election campaign, BJP seems a bit confused, jumping from one issue to another issue, and entirely BJP never projected any particular issue. They were simply... सबसे पहले आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं, और आज जो बिहार के चुनाव परिणाम आए हैं, इसके लिए मैं बिहार के लोगों को बधाई देता हूं, और ये बिहार के लोगों की जीत है, बिहार की भावना की जीत है। ये बिहार के स्वाभिमान की जीत है, और महागठबंधन को बिहार के लोगों ने एक मुश्त और जबरदस्त समर्थन दिया। उसी का ये परिणाम है जो आपके सामने है। जो अनुमान लगाए जा रहे थे कई प्रकार से, ये कांटे की टक्कर है, तो बिहार के लोगों ने बता दिया कि इसमें उनका मन पूरी तरह बना हुआ था, और इसलिए इस प्रकार का परिणाम आया है। इसके लिए बिहार के सभी मतदाताओं को, बिहार के लोगों को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं, और समाज के हर तबके का समर्थन मिला है, महिलाओं का, युवाओं का, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के हों, अल्पसंख्यक समाज के हों, अक़लियत जमात के लोगों का, पिछड़े वर्ग के लोगों का, अति पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलित, महादलित, आदिवासी और ऊंची जात के लोगों का, सब लोगों का समर्थन, इसमें कोई तबका अछूता नहीं है। और महागठबंधन ने बहुत ही एकजुटता के साथ अपना काम किया है, इसलिए जो भी परिणाम है वह महागठबंधन को स्पष्ट समर्थन देने का जनता के द्वारा उसका द्योतक है। और जिस तरह से चुनाव के दौरान काफी आक्रामक कैंपेन हुआ, और जिस ढंग से जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी या उत्पन्न करने की कोशिश की गई, तो सभी प्रकार के कयास उसके आधार पर लगाए जा रहे थे, और सबको
एक सिरे से अलग करते हुए बिहार के लोगों ने अपने विजडम का और अपने मत को प्रकट किया। यह जीत बहुत बड़ी जीत है और इस जीत को हम सब लोग विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं और इस जीत में जहां लोगों का समर्थन है तो ये साफ दिखता है कि लोगों के मन में कुछ आशा बिहार को आगे बढ़ना चाहिए और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और समाज के हर तबके के मन में जो उम्मीद है हम सब लोग उसको अच्छी तरह समझते हैं और जो जनता की उम्मीद है उसके अनुरूप हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने चुनाव के पूर्व और चुनाव के दौरान महागठबंधन में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस तीनों ने पूरी एकजुटता का परिचय दिया है और आज जो मैंडेट मिला है इस एकजुटता को भी मैंडेट मिला है, लोगों ने इसको पसंद किया। इसलिए हम सब मिलकर इस मैंडेट के अनुरूप काम करेंगे और हम लोगों के मन में कोई बिहार के संदर्भ में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रहेगी। चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो हम अपने काम में उससे प्रभावित नहीं होंगे। हम लोग मिलजुल कर पॉजिटिविटी के साथ एक सकारात्मक सोच के साथ हम लोग आगे काम करेंगे। हाँ, बिहार का जो चुनाव है इस चुनाव पर देश भर के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी और जिस प्रकार से आज सवेरे पता नहीं वो हो सकता है पोस्टल बैलेट की गिनती होती है और उसके कुछ परिणाम सामने आए थे, उसके आधार पर कितना इंटरप्रिटेशन शुरू हो गया था। इसको लेकर देश भर के लोगों के मन में एक बेचैनी का भाव पैदा हुआ। मैं तो स्वभावतः देखता नहीं हूं और मैं तो उस समय तक तैयार भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद जो मालूम हुआ जिस प्रकार से सब जगह से लोगों ने फोन किया और हमने देखा है कि जीत जब हम लोगों को मिली और जिस प्रकार का रुझान प्रकट हुआ तो देश भर में लोगों के मन में उल्लास था। तो एक जो देश भर के लोगों की निगाह टिकी हुई थी इस चुनाव पर, तो स्वाभाविक है कि बिहार के जो नतीजे आए हैं उसका एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी मतलब है और ये साफ हो गया कि पूरे देश में अब राष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त विकल्प और सशक्त विपक्ष की चाहत लोग रखते हैं, क्योंकि इस तरह से दिलचस्पी नहीं हो सकती थी किसी एक चुनाव में, किसी एक राज्य के चुनाव में। और थोड़ी सी सवेरे ऐसी खबर फैली तो जितनी बेचैनी का वातावरण बना और जैसे ही सब कुछ ठीक हो गया तो जितना उत्साह का और उल्लास का वातावरण बना, इससे साफ पता चलता है कि देश भर के लोगों की इच्छा एक सशक्त विपक्ष की अवश्य है और सबकी निगाहें बिहार पर टिकी हुई थी कि बिहार में परिणाम अच्छे आएंगे तो इसका नेशनल इम्पैक्ट हो। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के प्रति लोगों की जो निष्ठा है और आस्था है, और लोकतंत्र में कोई नहीं चाहता किसी को सत्ता सौंपने के बाद भी लोग यह नहीं चाहते हैं कि विपक्ष कमजोर हो। लोग चाहते हैं कि विपक्ष भी इतना स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे कि सरकार ठीक ढंग से काम करे। तो बिहार के संदर्भ में तो हम आपको यही कह सकते हैं, हम लोग सब बैठे हैं कि हम लोग तो विपक्ष का सम्मान करेंगे। हम अपने यहाँ का जो बिहार के संदर्भ में जो विपक्ष है
उनका हम सम्मान करेंगे और हम चाहेंगे कि बिहार के जो प्रमुख मसले हैं उन मसलों पर एक सर्वानुमति बने, कॉन्सेंसस बने और मिलजुल कर हम लोग करें। इसलिए जीत के बाद कोई हम विपक्ष के प्रति बिहार में जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी थे उनके बारे में कोई हम लोगों के मन में ऐसी भावना नहीं है कि हम उनका मजाक उड़ाएं। इस तरह की भावना से हम कभी गाइडेड नहीं होते, आगे भी नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि नेशनल कंटेक्स्ट में जो एक लोगों के मन की भावना थी और बिहार पर जो निगाह टिकी हुई थी, तो बिहार अपनी इस भूमिका को भी समझता है। और हम लोग महागठबंधन के लोग जितनी एकजुटता चुनाव में थी उतनी ही एकजुटता और उससे भी ज्यादा एकजुटता के साथ आगे अपना काम करेंगे, ताकि लोगों का हौसला और बुलंद। और आज सब लोगों ने बधाई दी है, प्रधानमंत्री जी ने भी दी है, और हम लोग यही चाहेंगे कि चुनाव के दौरान चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब जनता का मैंडेट आ गया, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो केंद्र का सहयोग मिलना चाहिए और हम लोग देश की प्रगति के लिए एक जिसको सकारात्मक रवैया अपनाकर चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि उधर से भी हो। और इसी प्रकार से सब लोगों ने कहा, माननीय सोनिया जी ने कहा, राहुल जी ने फोन किया, पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी ने कहा, और सब लोगों को धन्यवाद देते हैं। चंद्रबाबू नायडू जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, सारे लोगों ने बधाई दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने भी बधाई दी है, यानी सभी, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने बधाई दी है। तो सब जगह से, सब तरफ से लोगों ने जीत की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है, और जितने लोगों ने भी ट्वीट करके भी अपनी बधाई दी है, मैं उनके प्रति शुक्रगुजार हूं। और राज्य में भी जो हमारा जिनसे हम लोगों का मुकाबला था, उसके नेता श्री सुशील कुमार मोदी जी ने भी फोन किया, तो सबको हम धन्यवाद देते हैं। और ये जीत जनता की जीत है और महागठबंधन की जीत है, और ये जो महागठबंधन की एकजुटता और महागठबंधन ने जिस प्रकार से काम किया, प्रारंभ से ही हम सब लोग एक मत रहे, कोई विवाद सामने नहीं था, और आगे का भी साझा कार्यक्रम भी हम लोगों ने मिलकर तय किया। देखिए, जो एक बात थी कि महागठबंधन के बाद हम लोगों ने सीटों का निर्धारण किया, कौन पार्टी किस सीट पर लड़ेगी ये तय किया बिना किसी विवाद के। और जब कैंडिडेट का चयन हो गया तो हम लोगों ने अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की अपनी अपनी पार्टी से। तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा एक साथ महागठबंधन के रूप में, और तीनों पार्टी ने अलग अलग अपना दृष्टि पत्र या घोषणा पत्र जारी नहीं किया, बल्कि तीनों पार्टियों के महागठबंधन ने अपना साझा कार्यक्रम जारी किया। और ये बहुत बड़ी चीज है। आमतौर पर गठबंधन होते हैं, लेकिन कार्यक्रमों के बारे में इतनी क्लैरिटी पहले से नहीं रहती है, और हम समझते हैं कि जो इतना बड़ा मैंडेट मिला है, तो हम लोग इसको विनम्रता पूर्वक, जनता ने जो जिम्मेवारी सौंपी है हम लोगों पर, भरोसा दिया है, विश्वास किया है, हम उनको यही आश्वस्त करेंगे कि हम उनके भरोसे के लायक काम करने की पूरी कोशिश करेंगे अपनी क्षमता पर, और बगैर किसी इल विल के किसी के प्रति हम लोग काम करेंगे। समाज में सौहार्द का वातावरण हो, सामाजिक सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण हो। और एक हम लोगों ने महसूस किया था कि चुनाव के दौरान कई तरह से इस प्रकार का प्रयास हुआ कि समाज में ध्रुवीकरण की कोशिश की जाए, लेकिन हमने देखा कि जनता ने पूरे तौर पर इन चीजों को नकार दिया है। तो लोगों का जो मन बना है वो एक सोच समझकर और ठोस ढंग से बना है।
और हम लोगों को तो ये बात लगती थी कि जितना बड़ा अलायंस हम लोगों का है, महागठबंधन बना है, और जो सपोर्ट बेस है और जिस ढंग से लोगों के मन में एक जिसको कहिए समर्थन का भी भाव है, वैसी स्थिति में विक्ट्री जबरदस्त होनी चाहिए। तो कभी कभी जो खबरें आती थी कि बिल्कुल कांटे की टक्कर है और लोगों को लग रहा था कि ये दिस वे और दैट वे बहुत मामूली फर्क होगा, तो इन सब चीजों को नकारते हुए जनता ने डिसाइसिव मैंडेट दिया और इसी की परिस्थिति, ऐसी ही परिस्थिति को हम लोग महसूस करते हैं। और बाकी चीजों पर तो हम लोग आपस में बैठेंगे और कहां क्या बहुत मार्जिनल वोट से कई सीटों को हम लोग लूज किए हैं, तो उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे और क्या कारण है। तो नहीं कहते हुए सब लोगों को फिर से मैं विनम्रता पूर्वक पूरे प्रदेश की जनता के प्रति आभार जतलाता हूं और उनके प्रति अपने समर्पण को व्यक्त करता हूं और हम सब लोग मिलकर उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करें। ये नहीं सर, ये माइक इसका थोड़ा सा मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस के नेता अशोक चौधरी जी, यूनाइटेड के अध्यक्ष हम लोग के सीनियर वशिष्ठ भाई, सभी प्रेस के साथीगण, बिहार के महान जनता को, खास करके पिछड़े वर्गों के लोगों को, जिसमें अत्यंत पिछड़े भी आते हैं, अल्पसंख्यक समाज को, दलित महादलित समाज को और अपर कास्ट के प्रगतिशील और गरीब लोगों को इतना शानदार ढंग से, इतना भाजपा के आक्रमण के बावजूद जो मैंडेट दिया है, हम उनके सामने नतमस्तक हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। चिलचिलाती धूप में आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग अभियान में थे, तो हमें कभी कहीं नहीं अविश्वास था कि 190 से कम होगा, तो कभी भी नहीं था। तो जो हमारा आकलन था वो 190 के अप्रोचिंग हम पहुंच गए, 190 के करीब पहुंच गए। ये जो मैंडेट मिला है, मैं बोलता था हर सभाओं में कि यहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार, मुख्यमंत्री बनेंगे, सरकार बनेगी, यहाँ कोई झंझट नहीं है। असली झंझट हम करने वाले हैं दिल्ली के गद्दी पर। हम एक क्षण भी आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नाम के हैं, वो संघ के प्रचारक हैं, क्लियर कर दीजिए। और संघ का प्रचार वो कर रहे हैं, देश के सामने विगत लोकसभा के चुनाव में हम लोग के बंटवारा का लाभ उठा के जो चारों तरफ गला फाड़ फाड़ के भाषण कर रहे थे, तो मोदी जी समझे कि हरियाणा है और महाराष्ट्र है।
बिहार ने बता दिया, बिहार के करीब गुरबा जनता ने बता दिया कि बिहारी लोग को ही मत समझो कि फूहर हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं। ये बड़े भारी तपस्वी हैं, न जाने कितने लोगों को देखा है, समझा है। और उल्टी चिड़िया को हल्दी लगाता है बिहारी लोग। हल्दी हम लोगों ने, हमारी जनता ने लगा दिया। नीतीश जी सुबह नहीं देखे होंगे, तो जो चल रहा था कोई टीवी पर, तो हम लोग बाले बच्चे घूमते चले गए। इस बार उस कुर्सी पर हम नहीं बैठना चाहते थे, जहाँ बराबर बैठते थे वहां बैठते हैं बाहर। तो जब जब बैठते थे तो हम हार जाते थे। इस बार इधर सब उधर, इधर सब उधर, छटपट में हम थे। सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। 4 बजे से आप लोग डटे हुए थे हमारे घर से। तो उठे हम टहलने के लिए, तो देखा भाई अपना चोर कहाँ से है। तो हम निकल गए बाहर, हमने कहा गुड मॉर्निंग, सभी लोगों को शुभकामनाएं, चाय पीजिए, हमको टहलने। इतना बड़ा जो मैंडेट मिला उसमें अब बोलने से कोई फायदा है नहीं। बहुत फूहड़ बातों की चर्चा हो रही थी उस टीवी में। बोलना अच्छा नहीं लगता है, लोगों को तकलीफ होगा। हर आदमी के मन में जो अपना पीड़ा है वो कभी निकल नहीं सकता, लोग बोल रहे थे। हमें यहाँ प्रशांत किशोर जी हैं, रणनीतिकार हैं, उनको टेलीफोन किया कि भाई क्या हो रहा है, क्या आप मैंने देख रहे हैं। लेकिन ईटीवी का प्रबोध हमेशा बताते रहे कि भाई बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं कि ये आता है बाहर से, बैलेट आता है ना बाहर से, पोस्टर, उसका ये रिपोर्ट है, उसका रिपोर्ट है। और बीजेपी के दफ्तर में हमने देखा इतना फूहड़ ढंग से रिजल्ट देख करके पोस्टल ऑर्डर वाला देश पड़ाका लालू नीतीश मुर्दाबाद खत्म हुआ, ये वो फलाना। उसके बाद से जब हम लोग 190 की तरफ बढ़ने लगे तो पता नहीं ये सब कहाँ चले गए। तो देखिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी, ये शुरू से हम बोलते आ रहे हैं। और कितना भी कोई माथा पटक लेगा, मैं देखता हूं कि बहुत सारा चर्चा डिबेट लोग शुरू करते रहते हैं। कहीं भी इतना बड़ा मैंडेट गरीबों ने हम लोग को दिया है। और हम लोग के अंदर कहीं भी किसी तरह की बात हुई तो जनता कभी भी हम लोग को माफ नहीं करेगी। इतना होश और हवास हम लोग को है। बार बार ठीक कहा नीतीश कुमार जी ने, हम थोड़ा खोल के बोल देते हैं, थोड़ा ढक के बोलते हैं। हर कोशिश की गई मुहर्रम के अवसर पर, राष्ट्रीय त्योहार दशहरा के अवसर पर, जिस माँ का पूजा हम लोग करते हैं वो माँ का, ये सारा का सारा इलेक्शन कमीशन के रोक के बावजूद इन लोगों ने सोसाइटी को कम्युनलाइज करने का कोशिश किया। लेकिन बिहार के हिंदू भाई, मुस्लिम, गरीब, गुरबा इतने अलर्ट थे, और हम लोग अलर्ट किए भी थे। इनका सारा हथियार फेल हो गया, सब फेल हो गया इनका। तो अब तो हम बोले थे कि भाई इस जीत के बाद हम दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। हम बोले हम उससे वापस नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर हम फील्ड में नहीं जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ सरकार और कार बनवा के सबसे पहले हम बनारस में जाएंगे। बोले थे ना मोदी जी की हमको कोई नहीं बुलाया है, हम अपने नहीं आए हैं, गंगा जी ने हमको बुलाया है।
और वहां कई एक तरह का वादा इन्होंने किया था। तो हम अपना पार्टी के चुनाव चिन्ह लेके, लालटेन लेके, हाथ में लालटेन लेके हम सब ढूंढे कहां कहां किस बुनकर के घर में कौन गांव को इन्होंने अडॉप्ट किया था। कौन केटो टाउन है ना कोई बनाने के लिए, जर्मनी का क्या बोला, अरे केटो जो हाँ, तो वो भी देखेंगे कैसा उसका है, ये हवड़ा का पुल बना है कि क्या बना है। तो भारी आंदोलन हम खड़ा करेंगे। सरकार तो यहाँ पक्का सील हो गया, लॉक हो गया, और हमारा हक और हुकूक बिहार का, हम कोई कंप्रोमाइज करने वाले नहीं। बिहार को नेशनल मैप पर हम लोग ले जाएंगे और बिहार के महान जनता को हम लोग विश्वास दिलाना चाहते हैं, देशवासियों को, कि देखिए कट्टरपंथ के खिलाफ देश के कई एक विद्वानों ने पद्मश्री, पद्म विभूषण सब लौटाना शुरू कर दिया पहले से। ये जो कट्टरपंथ है सब, तो इनके जहन में ये था कि बिहार को हम हथियार लें हवा में, और ये कलकत्ता घुसना चाहते थे नरेंद्र मोदी। कलकत्ता के रिपोर्टर लोग हमें तेज सुन लेना, ये इनका प्लान था कि बांग्लादेश के बगल में जो कलकत्ता, उसमें हम घुसे, और बिहार ने इतना जबरदस्त वोट लगा दिया कि कलकत्ता से इनको पहुंचने का, बिहार से इनको खाली पैर हम लोग लौटवा दिया बिहार की जनता, और खाली पैर चले गए। हमने कहा था कि रिलायबल सोर्सेज से हमको पता लगा है, इस जीत के शानदार जीत के बाद नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देके गुजरात वापस जाना पड़ेगा, और आप लोग देखिएगा कि और क्या क्या खेला होता है। ये सारा खेल होने वाला सब, और पूरा देश में जितना उल्लास है लोगों के मन में, मैं बयान नहीं कर सकता हूं। चारों तरफ राज्य में, हर राज्य में हम लोग जाएंगे। नीतीश जी को दिक्कत होगी, लेकिन मुख्यमंत्री रहेंगे, सरकार चलाते रहेंगे, तो इनको आंदोलन में हम कम ले जाएंगे नीतीश कुमार, और हम फ्री हैं। और जनता के सामने मैंने वादा किया ये सब बात, मैंडेट जो सब मिला है, इस पार्टी को, ये कोई पार्टी है भाजपा, ये तो मुखौटा है। और मोहन भागवत ने जो कहा, मालूम है क्या बोल दिए थे, बिहार के और देश की जनता को मालूम हो गया कि तो आरक्षण हमारा खत्म करना चाहता लोग। जितना गर्म हुआ बिहार और चारों तरफ गर्म हुआ, उस लौ में चल के जो सब भस्म हो गए। काम कुछ नहीं, खाली भाषण करना। आज के अवसर पर आप लोग, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी दुखी जरूर होंगे, और कल के बाद हम बोलेंगे। आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, नीतीश जी को बधाई दिए हैं तो अच्छी बात है, तो मैनर कर्से है, देना ही चाहिए, लेकिन दिल से दिए है कि नहीं नीतीश के बाद सब तो हम लोग, ये जो रूटीन वर्क होता है तो बात हम लोग बुझते हैं। तो ये सारी बातें हैं जिसको, ये देश सबों का है, देश सबों का, सिर्फ हिंदुस्तान भारत में नहीं। इंटॉलरेंस के सवाल पर आपको मालूम होगा कि वो कलाकार को किस तरह से लोग प्रताड़ित, मैं जानना चाहता था, जानना चाहता हूं कि रिपब्लिक डे पर जिस दिन आप बुलाए थे ओबामा जी को, सुपर कंट्री के हेड को, क्या कहा था दिल्ली में रहते उन दिनों में ओबामा जी ने, कि रंग भेद और रिलीजन के नाम पर देश का बंटवारा उचित नहीं है। एक चाबुक दिया था, और यहां से अमेरिका लौटने के बाद ओबामा जी ने कहा था कि जिस तरह से धार्मिक असहिष्णुता भारत में है,
और गांधी जी भी होते तो शर्मिंदा होते। बड़ा भारी खतरनाक बिगाड़ने वाला। इनको इस देश में रखना देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बराबर है। और बिहार की जनता ने इस बात को समझा और हवा बहा बिहार से। इस सारा लौ हवा पूरा बिहार का देश भर में नया दिशा देगा और इसका दुर्गामी परिणाम होगा। और हम बिहार के लोगों को ये ना समझे कि ऊंची जाति के भाई कहीं नाराज होंगे। हम सबके लिए हम लोग हैं। हमारी सरकार जो बन रही है सबके लिए है। लेकिन जो लोग वोट दिए बीजेपी को जानबूझ के जो वोट दे रहे हैं हम लोग के हेटरेज में कि लालू आ जाएगा, नीतीश है, ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। इस देश में वो भी दे दिए वोट। आगे से आप लोगों को भी संकल्प कर लेना चाहिए। ये देश का सवाल है, उसी देश में हम लोग भी सब लोग हैं। और अब हम बंद कर देते हैं। आप लोग को धन्यवाद। कोई भी अखबार के भाई को कुछ हम बोले हों तो हमारी जीत हो गई, आगे वापस ले लेते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। बोला तो पीड़ा महागठबंधन की जीत के लिए सबसे पहले बिहार की जनता को बधाई देते हैं। इस महागठबंधन की शानदार जीत के लिए सब उठा रखा है, ऐसे बदले देते हैं। इस महागठबंधन की शानदार जीत के लिए नीतीश जी का चेहरा, लालू प्रसाद जी, सोनिया गांधी और राहुल जी का आक्रामक चुनाव प्रचार, इतने लंबे जो हम लोगों को सीटें आए उसका कारण है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो हम लोगों ने 7 सूत्री कार्यक्रम इस देश की जनता को दिया उसको इम्प्लीमेंट कराना और एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट देना। महागठबंधन का नीतीश जी के नेतृत्व में एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट देना जिससे कि दोबारा बिहार विकास की प्रगति पर आगे आ सके, ये कांग्रेस की प्रायोरिटी होगी। धन्यवाद। क्या मोदी जी ने आपको फोन किया बधाई देने के लिए? हमारे संधि जी मुलायम सिंह यादव जी बधाई दिए। उनके भाई साहब शिवपाल जी बधाई दिए। सोनिया जी सही सभी उनके परिवार, उनके दामाद, उनकी बेटी गोटा सिंह जी, माननीय मनमोहन सिंह जी और जी, राजनाथ भाई सब लोग दिखाई दिए। लेकिन मोदी जी शर्मा लेकिन अभी शर्मा है तो नीतीश जी को देता होगा बधाई होगा। बाकी सब लोगों को बधाई करता है। सतवान सिन्हा जी लंदन में साथ है, आज जा रहे अब भी बहुत खुश हुए। सोशल मोदी हमारा फोन किए सोशल बधाई दिए और हमने श्योर किया कि सेक्रेटरिएट क्या करते मेहनत किए हो, सोशल मेहनत किए हो, अभी क्या बोलोगे? मना तो न बात सुनी। सोशल को बोले कि सेक्रेटरिएट में कोई फिर बदल नहीं रहेगा। बात सुनिए ना, आप सोशल बोलो कि भाई
पर कदम सिंगार पिया पिया ऊपर सवाल है नीतीश जी, आप हमेशा आडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी की चर्चा करते रहे हैं। आडवाणी जी के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ पूरे चुनाव में उसकी भी चर्चा की। आज आडवाणी जी का जन्मदिन है। इस दिन विक्ट्री अ ट्रिब्यूट टू आडवाणी जी एंड वाजपेयी और दिस वेरी डे। आडवाणी जी का जन्मदिन है और हर वर्ष की भांति हमने इस वर्ष भी उनको जन्मदिन के अवसर पर हमने शुभकामनाएं दी और फोन करने वाले तो काफी और लोग जिनका फारूक अब्दुल्ला साहब से भी तो कई लोग ये हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी, तो सारे लोग विभिन्न प्रांतों से अनेक लोगों के और राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न दलों के अनेक नेताओं का फोन आया, लोगों ने बधाई दी और काफी बरनाला साहब सुखदेव सिंह बरनाला साहब इनमें उनके होने के बाद भी और काफी सीनियर लीडर रहे हैं। हम उनको पहले से उनसे मिलने का और मैंने पूछा कि क्या ये बर्थडे गिफ्ट है आडवाणी जी को? क्योंकि ये सब काम तो आप आज मेरे लिए कोई ऐसी बात करना शोभा नहीं देता है। बिहार की जनता ने इतना बड़ा मैंडेट किया और चुनाव के दौरान तो सारी बात लोग करते थे, उसका उत्तर भी हम लोग देते थे, लेकिन उसके बाद आज सब चीजों पर पटाक्षेप हुआ। और एक बात तो स्पष्ट है, एक तरफ काम करने के लिए मैंडेट दिया महागठबंधन को कि काम कीजिए, ठीक ढंग से काम कीजिए, समाज के सभी तबकों को लेकर चलिए। और जिस तरह से बिहार में सभी प्रकार के उकसावे की कार्रवाइयों के बावजूद जो सद्भाव का माहौल रहा, इसके लिए बिहार के लोगों को मैं बधाई देता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं। इस बार देखिए दशहरा और मुहर्रम एक समय था और जिस प्रकार से एक शांतिपूर्वक ढंग से सद्भाव का वातावरण कायम रखा है लोगों ने और लाख कोशिश के बावजूद ध्रुवीकरण का प्रयास नाकाम रहा है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो जाहिर तौर पर महागठबंधन के लिए दिवाली शुरू हो गई है और इतने बड़े मैंडेट के बाद जनता से मुखातिब हुए खुद नीतीश कुमार और साथ ही आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उन्होंने कहा है कि ये जो मैंडेट है ये बिहार की जनता की जीत है। नीतीश कुमार ने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि वो सकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं और साथ ही वो अब विपक्ष का सम्मान करेंगे और किसी तरह की मजाक की भावना के साथ विपक्षियों को नहीं लिया जाएगा। एक मजबूत विपक्ष की भी उन्होंने बात की और लालू प्रसाद यादव भी बिहार की जनता का धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा है कि अब कोशिश होगी देश की राजनीति को बदलने की और वो एक आंदोलन की शुरुआत करने की भी बात कह रहे हैं। बिहार की जनता ने महागठबंधन के पक्ष में जमकर वोटिंग की है और वोट शेयरिंग के अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो हम आपको ये आंकड़े दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं वोट प्रतिशत में अगर बात की जाए तो ये तमाम आंकड़े इस समय आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ इंदु भारती जुड़ी हुई है, पटना से आईएसडी के हेड हैं, उनका हम रुख करेंगे। इंदु जी शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। हमने देखा नीतीश कुमार ने साफ तौर पर धन्यवाद दिया है बिहार की जनता को और उन्होंने खुद कहा है कि बड़ी जिम्मेदारी इस बड़ी मैंडेट के साथ आप क्या मानते हैं महागठबंधन के आगे, नीतीश कुमार लालू प्रसाद के आगे अब किस तरह की चुनौतियां हैं? इस समय इंदु भारती जी से हमारा संपर्क टूट गया है, कोशिश करेंगे उनसे हम जुड़ने की। और हमारे साथ इस समय अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता जेडीयू ऑफिस दिल्ली में मौजूद हैं। अखिलेश खुद जनता से पत्रकारों से मुखातिब हुए हैं और उनके जरिए लोगों से मुखातिब हुए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और खुद कह रहे हैं कि इतने बड़े मैंडेट के बाद अब उतनी ही बड़ी चुनौती उन दोनों के आगे है, महागठबंधन के आगे है। आप तस्वीरें दिखाते हमें समझाइए अब किस तरह की चुनौती की बातें होंगी और
किस तरह की राजनीतिक तस्वीर नजर आने वाली है हमें? देखिए प्रीति, सबसे पहले तो चुनौती नीतीश कुमार के सामने यह है कि लालू प्रसाद यादव की आरजेडी उनसे भी ज्यादा सीट लाई है, जेडीयू से ज्यादा सीट। तो एक तरह से नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कैबिनेट में कौन मंत्री होगा, किसको कौन सा पोर्टफोलियो दिया जाएगा, यह नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चुनौती होगी। उसके अलावा एक बात जो बार बार उठती है जब कोई गठबंधन बनता है, वह होता है उप मुख्यमंत्री का। तो स्वाभाविक तौर पे हो सकता है आरजेडी की तरफ से यह मांग उठे कि उप मुख्यमंत्री एक आरजेडी का बनाया जाए। अब आरजेडी के जो सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनके पुत्र भी चुनाव मैदान में थे और उन्होंने विजय हासिल की है, तो स्वाभाविक तौर पे हो सकता है कि उनको वो उप मुख्यमंत्री बनाए, हालांकि वे पहली बार एमएलए बने हैं। तो यह जो एक व्यवहारिक बात है, सबसे पहली व्यवहारिक बात राजनीति में होती है कि सत्ता का बंटवारा किस तरह से हो, जबकि कोalition है तो नंबर्स के हिसाब से मंत्री पद दिए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो खुद नीतीश कुमार ही बनेंगे, ऐसा लालू प्रसाद भी कह चुके हैं। लेकिन उसके बाद जो मंत्रिमंडल का आकार होगा उसकी भी संख्या सीमित होती है, तो उन जो एमएलए की संख्या है उसके अनुपात में मंत्री बनेगा या नीतीश कुमार के चॉइस के हिसाब से मंत्री बनेगा, यह एक बड़ी चुनौती होगी। दूसरी बड़ी चुनौती होगी केंद्र में एनडीए की सरकार है। एनडीए की सरकार के मुखिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 28 रैलियां की हैं बिहार में और उन्होंने 1,25,000 करोड़ से भी ज्यादा के वादे किए हैं बिहार को जनता को देने के लिए। तो अब जो सबसे बड़ी चुनौती होगी नीतीश कुमार के साथ कि वे टकराव में जाते हैं प्रधानमंत्री के साथ या उनके साथ कोई तालमेल बिठाकर वो जो पैकेज है उस पैकेज को बिहार में लाकर बिहार में जो विकास की कमी है, बिहार में जो एक जो कहते हैं कि डेवलपमेंट डेफिसिट है, ह्यूमन कैपिटल है, लेकिन वहां पे काम नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, चाहे तो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, हर जगह। और ये तमाम चुनौतियां अभी अब नीतीश कुमार और साथ ही लालू प्रसाद यादव और उनके महागठबंधन के आगे है और देखना होगा इस पर किस तरह से काम होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ रविंद्र सिंह शुरान जुड़े हुए हैं, बीजेपी ऑफिस पटना में वो मौजूद हैं। हम समझ सकते हैं वहां किस तरह का नजारा होगा रवीन, लेकिन अब नीतीश कुमार ने भी कहा है कि वो किसी तरह की मजाक की भावना के साथ काम नहीं करना चाहते, एक सकारात्मक राजनीति करना चाहते हैं और विपक्ष को पूरा सम्मान देना चाहते हैं। आप बताइए बीजेपी के आगे विपक्ष के तौर पर कितनी बड़ी चुनौती और किस तरह का रोल रहने वाला है, इसे किस तरह से साबित करेगी बीजेपी? अब देखिए, जिस तरीके से बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ी हार हो जाएगी, उसके बाद से लगातार यहाँ सवेरे के नतीजों के बाद सन्नाटा पसरा हुआ है। बीजेपी अभी इस हार की समीक्षा कर रही है। कोई भी अधिकृत तौर पर नेता अभी तक हमारे सामने नहीं आया है बयान देने के लिए। 5:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जो है वो आकर के एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस का एड्रेस करेंगे और उसके बाद हार जो हुई है उसके कारणों की चर्चा की जाएगी। उसके बाद बीजेपी का कहना है कि आगे की रणनीति क्या होगी, इस तरीके से जो वर्तमान एनडीए का गठबंधन है वो बिहार में एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा सके, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे। और अभी तक जिस तरह का जो इनके पास बीजेपी के पास जिस तरह का मैंडेट अभी मिला है, जो जनता ने इनको विपक्ष में बैठने के लिए आदेश दिया है, उसके हिसाब से यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो बड़ा मायूसी के साथ ये कह रहा है कि कहीं न कहीं जो इनकी योजनाएं थी या जो रणनीति थी बीजेपी उसमें विफल हुई है। केंद्र सरकार की जो अच्छी योजनाएं थी उनको जनता यानी रवीन, हाँ बिल्कुल, हार की समीक्षा, हार के कारण जरूर तलाशे जा रहे हैं, लेकिन अब जो जिम्मेदारी बिहार की जनता ने दी है उसे अच्छी तरह निभाया जाए, इस पर भी जरूर बीजेपी को मंथन करना होगा कि वो विपक्ष की जिम्मेदारी अब किस तरह से निभाती है। हमारे साथ आईएचडी के अध्यक्ष इंदु भारती पटना से जुड़ी हैं, अब उनका रुख करेंगे। इंदु जी, जो प्रयोग किया गया बिहार में गठबंधन को लेकर, दिल्ली ही ऐसा हमें राजनीति में देखने को मिला और ये कितना कामयाब रहा, इतना बड़ा जनादेश मिला, ये हमने सबने देखा। अब आपको क्या लगता है आगे, चाहे हम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर अगले लोकसभा चुनाव की बात करें, चुनाव दर चुनाव, क्या हम एक बदलता राजनीतिक परिदृश्य देखने वाले हैं इन नतीजों के बाद? प्रीति जी, बेशक बिहार के जो नतीजे हैं, ये जनादेश जो है, ये सिर्फ जाति आधारित राजनीति को दिया गया जनादेश नहीं है, ये विकास को दिया गया जनादेश है। नीतीश कुमार को जनता ने उनके काम का दाम दिया है, लालू प्रसाद जी को उनके जनाधार का फायदा हुआ है और ये नीतीश कुमार की छवि, उनकी छवि और उनके काम के प्रति निष्ठा को और लालू प्रसाद जी के जनाधार को दिया गया एक कंबाइंड सपोर्ट है, ये कहेंगे। अच्छा। दूसरा पक्ष ये है कि भाजपा को जिस तरह से अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड उनका परफॉर्मेंस हुआ है,
इतना कम किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हम याद दिलाना चाहते हैं कि बिहार ने दूसरी बार भाजपा का रथ रोक दिया है। देश के परिदृश्य में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है इस अर्थ में कि बिहार जीतने का मतलब था भाजपा के लिए फिर बंगाल और उसके बाद आसाम की तरफ जीत की तैयारी। इस चुनाव ने इसलिए और इस अर्थ में भाजपा के रथ को यहीं पर रोक दिया है कि अब उनका प्रोस्पेक्ट आगे के लिए सीमित हो गया है। लेकिन नेशनल कंटेक्स्ट में देखें, अगर राजनीतिक राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो निश्चित रूप से अब नीतीश कुमार का कद एक ऐसे राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर गया है इन नतीजों के साथ कि अगले संसदीय चुनाव में उनकी स्थिति ये बन सकती है। सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, अगर महागठबंधन ठीक से चला तो ये एक सशक्त विपक्ष के रूप में, या कल को कहें कि सत्ता पक्ष का भी एक दावेदार होकर, और इसकी कहीं ना कहीं घोषणा अभी से लालू प्रसाद यादव ने भी कर दी है इंदु जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है वो सिर्फ बनारस का नहीं बल्कि इसे एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देंगे और जगह जगह जाकर वो जनता से मुखातिब होंगे एक आंदोलन के रूप में। अब देखना होगा कि राजनीति बदले और एक सकारात्मक रूप में एक नई तरह की राजनीति, क्योंकि लगातार बात हुई कि बिहार एक नई राजनीतिक दिशा देने वाला है देश को, एक सकारात्मक राजनीति हम सबके सामने आए, इस पर जरूर नजर रहेगी और उम्मीद भी ऐसी हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु भारती जी, आप हमारे साथ जुड़ी और इस तमाम बातचीत के लिए। और आखिर में अभी हम फिलहाल रुक करेंगे, हमारे साथ नवविक्रम सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हैं आरजेडी ऑफिस दिल्ली से। जाहिर तौर पर अब शाम का वक्त भी हो गया है नवविक्रम, और वहां पर भी खासी रोशनी अब जगमगाने की तैयारी हो रही होगी। नवविक्रम, आरजेडी के नतीजे जेडीयू से भी काफी बेहतर रहे, और किस तरह की प्रतिक्रिया अभी मिल रही है और किस तरह का रोशनी भरा माहौल है ये समझना चाहेंगे आपसे तस्वीरों के जरिए। जी प्रीति, मैं बताना चाहूंगा कि हम इस वक्त जो आरजेडी ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ सुबह के वक्त की अगर बात करें तो सुबह यहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से रुझान में बदलाव देखा गया, यहाँ पर लोगों की भीड़ लगातार आती रही। और अभी की अगर बात करें तो हमारे साथ प्रदेश महासचिव दिल्ली प्रदेश के मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि सर आप किस तरीके से देखते हैं जो आज नतीजे आए हैं। लालू जी ने कहा है कि दिल्ली समेत पूरे देश में अब हो जाएंगे। देखिए, ये जो जीत है ये आंदोलन के तहत आई है, सैक्रिफाइस के तहत आई है। ये महागठबंधन को जोड़ने का लालू जी का जो सपना साकार हो गया है। 3 दिन पहले ही लालू जी ने डिसाइड कर दिया था कि हम 190 के पास जा रहे हैं, और वो उनकी जो बात थी वो तयशुदा है। सारे चैनल 180 तक दिखाने लग गए हैं, और मैं समझता हूं कि ये जो जीत है ये पूरे ग्रैंड अलायंस की जीत है। नहीं, सवाल यह है कि अब दिल्ली जैसे इलाकों में, अगर दिल्ली जैसे इलाकों में या दिल्ली के बाहर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बिहार में बंगाल के लिए रथ रोक दिया गया है, तो अगर क्या आरजेडी बाहर दूसरे राज्यों में आएगी? निश्चित तौर पर महागठबंधन हमारा जो अलायंस है ये पूरे नेशनल लेवल पर बना है, और निश्चित तौर पर लालू जी ने यहाँ बैठे कार्यकर्ता, यहाँ बैठे नेता भी अब आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने इसका जिक्र भी किया है। नवविक्रम, फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और राज्यसभा टीवी लगातार रुझानों और नतीजों को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहा है, और साथ ही साथ इससे जुड़ा विश्लेषण भी आप तक पहुंचा रहा है। ये लाइव कवरेज हमारी लगातार जारी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं।